Later, he was also posted on the Assam-Burma front, where he experienced fierce fighting. He won a gold medal at the 1924 All India Athletics meet organized in New Delhi. जब दलीप सिंह जी एशियन गेम्स की मशाल लेकर नेशनल स्टेडियम में दाखिल हुए, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और उन सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। अब जैसे सर दलीप सिंह जी थे, वैसे ही उनके बेटे, वैसे ही उनकी ग्रैंड डॉटर्स, जिन्होंने स्पोर्ट्स के थ्रू अपने देश का नाम रोशन किया था। Dalip Singh ji has a yet another unique record to his name. He and his son, Mr. Balkrishan Singh, they are the first father-son duo from India to have played in the Olympics. He lived for sports, both of them. They only lived for sports. They were not interested in any recognitions, any money, nothing. Jimmy, ajkal sports is a lot about money and all that. He had no interest in all that. Now he is that one person, one personality who, to his credit, has an Olympic gold. The only one as a player and a coach. Following in his father's footsteps, Mr. Balkrishan Singh ji excelled in athletics at Punjab University. He was the university champion in long run and triple jump. He also won a gold medal in triple jump at the All India University Championship in 1951 and 1952. Dalip Singh's granddaughter Harina told that her father Mr. Balkrishan had to go to Lahore to study. But after the partition of India, Lahore became a part of Pakistan. During the partition, Dalip Singh was a colonel and was posted on the border. With the help of a senior officer in Lahore, he somehow sent Mr. Balkrishan to India on the last train. Balkrishan ji also successfully made his place in the hockey Olympic team. वो भारत की उस हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 1956 के ओलंपिक में गोल्ड और 1960 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। दलीप सिंह 1924 और 1928 में, उसके ठीक 32 सालों के बाद उनके बेटे मिस्टर बालकृष्ण सिंह 1956 एंड 1960 के ओलंपिक में भारतीय दल के सदस्य थे। बाद में मिस्टर बालकृष्ण जी ने कोचिंग का जिम्मा संभाला और वो ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने प्लेयर और कोच दोनों के तौर पर ओलंपिक में अपनी टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया। वो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली मेल हॉकी टीम के कोच थे। ये भी यहां पर नहीं रुके, और अचीवमेंट सुनो। He played an important role in teaching the tricks of hockey to the Australian team. इंडिया का बंदा देखो। And that is why he spent 5 months in Australia in the year 1967. The then Prime Minister of Australia, Mr. Malcolm Fraser, praised Mr. Balkrishan's contribution during his meeting with Indian Prime Minister Mr. Morarji Desai, then Prime Minister. See this image. बालकृष्ण जी ने इंडियन विमेन्स हॉकी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वो 1982 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन विमेन हॉकी टीम के कोच भी थे। आई एम सो प्राउड। इंतु कुम्मन, दलीप सिंह ग्रैंड डॉटर, बताती हैं कि उनके फादर मिस्टर बालकृष्ण जी ने ध्यानचंद की गाइडेंस में ही अपना कोचिंग का डिप्लोमा पूरा किया और NIS में एज अ फैकल्टी शामिल हुए। Flying Sikh Mr. Milkha Singh also sometimes used to train Mr. Balkrishan ji. Because of the army connection, Flying Sikh Mr. Milkha Singh was close to Dalip Singh. अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी ग्रैंड डॉटर्स, दलीप सिंह जी की ग्रैंड डॉटर्स, all 3 of them, इंतु कुम्मन, हरीना गिल एंड मीनू,
तीनों ने लॉन टेनिस में नेशनल लेवल पे पंजाब को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। पटियाला आर्मी जब इंडियन आर्मी में मर्ज हुई तो उसके बाद ब्रिगेडियर दलीप सिंह ने सर्विस टीम के लिए कोच कम मैनेजर का जिम्मा संभाला, जिसने फिर 1949 में नेशनल टाइटल अपने नाम किया। फर्स्ट एशियन गेम्स के दौरान भी उन्होंने सर्विसेज के लिए कोच किया, जहां उसने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। 1954 में एशियन गेम्स के दौरान फिलीपींस में ब्रिगेडियर दलीप सिंह इंडियन टीम के मैनेजर थे। इंडियन एथलेटिक्स टीम के 22 मेंबर्स में 14 प्लेयर्स सर्विसेज के ही थे, जिन्होंने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मतलब मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं बताने में। He played a vital role in laying the foundation in the services, especially athletics. Brigadier Dalip Singh ji retired from the army in 1951. Retirement के बाद भी नहीं रुके वो। After this, he contributed as an administrator in Patiala Sports. He was also the honorary secretary of Patiala Olympic Association. साल 1956 के नेशनल गेम्स पटियाला में हुए। तब उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए गेम्स विलेज को दलीप नगर नाम दे दिया गया। कितने ऑनर की बात होती है कि किसी के नाम पे कोई स्ट्रीट या कोई नगर, है ना? For future generations to be inspired by their glorious journey at the Olympics, their family has donated Dalip Singh's and Balkishan Singh's memorabilia, such as their blazers, their medals, their hockey sticks, their photographs, and the 1951 Asian Games torch to the National Sports Museum at the National Institute of Sports in Patiala. दलीप सिंह जी की ग्रैंड डॉटर कहती हैं कि उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम में रेनोवेशन के बारे में सुना है कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं और केयर टेकर्स हैं उन मेमोरीज को अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे। ऑल दिस इज देयर फैमिलीज लेगेसी, एंड इफ इट इंस्पायर्स समवन टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ दीज लेजेंड्स, देन इट विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू देम। अब बताती हूँ आपको वो बात जिसने मुझे अंदर से ही हिला डाला और कंपेल कर ही दिया कि ये स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊं। आप ये सोचो कि जब हमें कोई चीज़, कोई सुई, कोई कांच का टुकड़ा, पेपर कट, कोई कील चुभ जाती है रास्ते में कहीं चलते चलते, या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा चुभ जाता है, तो हम कैसे उसी वक्त तड़पते हैं, छोटे बच्चे की तरह, जैसे तैसे करके उसको प्लग करके निकालने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी की हेल्प ले लेते हैं, और जब तक वो नहीं निकल जाता तब तक कैसे इरिटेट से होते रहते हैं, वो ऐसे निकल जाए। दलीप सिंह जी के पैरों पर इतिहास लिखा हुआ है। वो कैसे? ये वही पैर हैं जिन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स और आर्मी की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम दलीप सिंह के पैरों पर बुलेट पैलेट्स छर्रे लगे थे। उनका एक एथलीट होना, उनको जब आर्मी में भर्ती होने की ट्रेनिंग मिल रही थी तब वहां उनकी प्रैक्टिस होना एक वरदान की तरह साबित हुआ। एथलीट होने की वजह से उनके पैर इतने मजबूत, इतने दृढ़, इतने बलवान बने कि उन छर्रों से उन्हें दर्द ही नहीं होता था। आजकल के जिम फ्रीक्स जो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, गोल सेट करते हैं, आज इतने किलोमीटर्स दौड़ लगाई है, आज इतनी जॉगिंग की है, आज इतनी रनिंग की है, क्या वो इतने मजबूत हैं? दलीप सिंह जी का क्या माइंडसेट होगा, क्या कमाल की सोच होगी, क्या जुनून होगा, क्या इमोशन होगा अपनी कंट्री के लिए। When his granddaughters used to say this,
We had a habit as children, whenever he would show us his legs, we would press those splinters and then he would make certain weird noises. So we would ask him, do they hurt you? Do they hurt you? He says, no, I'm proud of these splinters. He used to because always say my that history is written on my legs. Yeah. इन पैरों पर इतिहास लिखा हुआ है, इन पैरों पर इतिहास लिखा हुआ है, नमन है इन पैरों को। कैसी लगी ये कहानी? वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना आपने कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर लेते हैं। अब मेरा ये मानना है कि तीसरे टाइप के लोग भी होते हैं, दलीप सिंह जी जैसे, जो उस एक काम को इतनी वैरायटी दे देते हैं, उस एक एम में ही इतनी इनोवेशंस, पूरे जज्बे के साथ उस एक ही चीज में अपनी रेंज इतनी बढ़ा देते हैं कि एक काम होने के बाद भी वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ प्राउड, फुल ऑफ एनकरेजमेंट, फुल ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में द पगली सीरीज को मैं वापस लेकर आ रही हूं। जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं पता पगली सीरीज क्या है, वो सीजन 2 में जाके देखिए। हाँ, एक और बात, अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो और बता नहीं पाते हो, वो मुझे ईमेल ज़रूर करो। अगर आपको शेयर करनी है और अपना नाम नहीं ले सकते आप, तो मैं वो कहानियों को सामने लेकर आऊंगी। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।